Hello students, how are you beta? Hope you all are fine. And as you all are knowing that we have completed your chapter number 10. Your chapter number 10 is completed and today we will be doing your chapter number 11. Chapter 11. What is the name of your chapter 11? That is infrastructure. Infrastructure. Is it clear beta? Infrastructure. And it is on your page number 259 as per your TR Jain book. ठीक है? As per TR Jain book. First of all, we would study about what does infrastructure means. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? What is infrastructure? What is infrastructure? What is infrastructure beta? Infrastructure refers to support system of economic and social development of a country, without which economic growth and social development would only remain to be primitive. ठीक है, primitive means main importance in infrastructure is given to the social development. Primitive means main importance. Is it clear beta? If I am reading out your next paragraph, imagine life in the absence of the means of transport and communication. Imagine life in the absence of educational institutions, hospitals and nursing homes. Imagine life in the absence of electricity or oil and diesel. Absence of these things would only drive us to the primitive age when production was just for subsistence. ठीक है बेटा, हम सोच के देखें ना कि बिना बिजली के कैसा संसार होगा, कैसे हमारी लाइफ होगी, बिना कम्युनिकेशन के कैसी हो जाएगी. तो ये एक तरह से पुराने जो हमारे बहुत ओल्ड एजेस में होता था वैसी हो जाएगी. क्लियर है? दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर दोनों चीजें आती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल, बट ज्यादा एम्फेसिस किस पे आता है बेटा? सोशल डेवलपमेंट पे. ठीक है. नाउ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. टाइप्स ऑफ infrastructure. There are two types of infrastructure. First one is yours economic infrastructure.
then is your beta second one is your social इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, दो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लियर बेटा. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट इज योर नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. Infrastructure. It refers to elements. It refers to such elements of support system like power, transport and communication, which serve as a driving force for production activity. इन इकोनॉमी. ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द components of which are related to your power means electricity, transport means your modes of transport, then your communication facilities which are really important, and as a driving force means जिसके बिना चल ही नहीं सकता. तो किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए, किसी इकोनॉमी की प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए these things are important. ठीक है बेटा. Abundant availability of power supply would accelerate the pace of production. Abundant means of transport would facilitate the movement of goods, and abundant means of communication would facilitate the exchange and so on. अगर ज़्यादा पावर सप्लाई होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि बार बार मशीनरी बंद नहीं होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में वो चलती रहेंगी. फिर बेटा अगर आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर एक्टिवली वर्क करने लग जाएं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना इजीली हो जाएगा. और बेटा थर्ड, अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाए तो एक्सचेंज करना चीजों को और आने जाने का ट्रेवलिंग डिस्टेंस बच जाना, दैट विल फैसिलिटेट इट मोर. In absence of economic infrastructure, it is virtually not possible to develop an efficient system of growth and development. अगर efficient economic infrastructure नहीं होगा, it would not be possible to develop. इतना easy नहीं होगा कि एक efficient system of growth and development को develop किया जा सके. तो बेटा ये वाला जो sentence है, this is what in absence of economic infrastructure, it is virtually not possible to develop efficient system of ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है बेटा, जो आपकी बुक के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 पैराग्राफ दिए हैं. फर्स्ट वन इज फॉर योर डेफिनेशन, सेकंड वन इज व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव गुड फैसिलिटीज ऑफ पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड थर्ड पैराग्राफ इज योर आंसर टू द क्वेश्चन
what would happen if these facilities are not available. ठीक है, then is your social infrastructure. social infrastructure आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर आपके कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इट रेफर्स टू such elements of support system like schools, colleges, hospitals, and nursing homes which serve as driving force for social development. Serves as driving force of social development. ठीक है बेटा, अगर आपको इसमें और इसमें डिफरेंस बिटवीन करना हो तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? इसके अंदर पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आता है, इसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आते हैं। ये सारे ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूजफुल होते हैं और ये सारे ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट में यूज होते हैं। दो डिफरेंस बिटवीन हो गए। तीसरा बेटा आपका ये हो जाएगा, अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो सिस्टम एफिशिएंटली ग्रो नहीं करेगा। ग्रोथ के साथ यहाँ पे आपका डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट वन इज बेटा, सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू सोशल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो ये वर्ड यहाँ पे किया है हमने सोशल डेवलपमेंट, आपको इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए। सो आपको यहाँ से ये भी लर्न करना है, डिफाइन सोशल डेवलपमेंट। और ये आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट में ही गिवन है, आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इट अकर्स व्हेन देयर इज हेल्थी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन द कंट्री। और सोशल डेवलपमेंट कब होती है? इट अकर्स when there is healthy and efficient workforce in the country। तो जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट में फोर्थ सेंटेंस है बेटा, वहां से लेके लास्ट वर्ड तक द आंसर इज ऑफ योर सोशल डेवलपमेंट। इज इट क्लियर बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। Indeed, economic growth is incomplete without human development। अगर अच्छे से देखा जाए तो आपका ये सेंटेंस आ सकता है इन एग्जाम टू कमेंट, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनकम्प्लीट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो अभी तक मैंने जो आपको समझाया है वो सब इसके अंदर आ जाएगा एक्सप्लेन। ये आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आपको कोई बोले इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है। एक की भी कमी में दूसरा ग्रो नहीं कर सकता। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। वन रीइंफोर्सेस द अदर,
एक दूसरे को बढ़ावा देता है, एक कम हो जाएगा तो बेनिफिट्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। देन नाउ आई एम मूविंग टू योर ऑरेंज बॉक्स। मैं एक बार रीड कर लेती हूँ अच्छे से, अगर कुछ नया होगा तो आई विल टेल यू। इकोनॉमिक एंड सोशल आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दिस इंक्लूड्स thus all elements of economic are essential for economic growth. Economic infra must be complemented with social. ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। इज इट क्लियर? अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो जो भी आपके ऑरेंज बॉक्स में लिखा है दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन, आंसर हो जाएगा इसका ऑरेंज बॉक्स। इज इट क्लियर बेटा? और वो वही सारी बातें हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट इज द टॉपिक, सेकेंड टॉपिक एज पर योर बुक। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब बेटा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर, लीड्स टू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम रिलेशन पढ़ेंगे कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। फर्स्ट है बेटा आपका इसका हेडिंग, द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? इसके अंदर जो फर्स्ट थिंग है दैट इज योर प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर। प्रोडक्टिविटी इन पीएस मीन्स प्राइमरी सेक्टर। ठीक है बेटा। सेकेंड वन इज योर प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर and third one is beta your productivity in tertiary sector. Is it clear? अब आपके कैसे बढ़ती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थिंक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विदाउट परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज ना हो तो आप सोच के देखिए कि आपकी जो है वो प्रोडक्शन कितना होगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अच्छे से जब खेतों में पानी वगैरह नहीं दोगे तो अच्छे से नहीं होएगा। इसीलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाए, बेटर सीड्स मिल जाए, फर्टिलाइजर्स मिल जाए, अगर ये सब मिल जाएगा ना बेटा तो जो फार्मर्स है और उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ जाएगा, और वो बढ़ जाएगा तो फाइनली हमारा क्या बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही आपका है प्रोडक्शन इन सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए, कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर ये एफिशिएंटली मिल जाएंगे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो बेटा हमारा ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, देन इज योर टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर में आप देख लीजिए टूरिज्म है, और टूरिज्म के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। देखो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तो लोग दूर जाने में कतराएंगे, उनका मन नहीं करेगा। और अगर इतनी दूर चले जाए जहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम जो वो कट होने लग जाए तो वहां भी जाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए इन तीनों ही सेक्टर में अलग अलग तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें जो इनकी डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो इम्प्रूव हो जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों को हल्का हल्का आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे एंड यू विल गिव रीडिंग फ्रॉम योर बुक। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू योर सेकेंड पॉइंट,
That is, any word, any sentence you will not understand from this all, you will tell me. Then is beta, infrastructure induces investment. Infrastructure induces investment. Induces investment. जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बेटा, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है. इंड्यूसेस मीन्स बढ़ती है. ठीक है, कैसे बढ़ती है? A developed network of highways would definitely induce investment across all the sectors of the economy. अगर अच्छे से हाईवेज बन जाएंगे तो लोग है ना, जहां पर प्रॉफिटेबल बिजनेस उनको मिलेगा वहां पर जाके वो अपने पैसे को, अपने अवेलेबल फंड्स को, अपने कैपिटल स्टॉक्स को वहां पे इन्वेस्ट करेंगे. और अगर वो वहां पर उनको इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ गई ना बेटा. और इन्वेस्टमेंट जो है वो किसकी वजह से बढ़ी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. क्यों? क्योंकि बेटर हाईवेज फैसिलिटी मिल रही है लोगों को. इसका मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं? द थिंग विच वी कैन से दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ, यहां पर जो इंपॉर्टेंट की सेंटेंस है आपका, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज the backbone of investment. ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट. क्योंकि अगर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज मिलेंगी तो ही लोग उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. देन इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स linkages in production. लिंकेजेस इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. कैसे होंगे बेटा? देखो, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ample sources of energy with good facilities of banking and insurance would generate inter-industrial linkages. ठीक है, लिंकेजेस इन प्रोडक्शन का मतलब होता है एक किसी भी इंडस्ट्री के एक्सपेंशन की वजह से दूसरी इंडस्ट्री भी एक्सपेंड करे. ठीक है बेटा, ऑरेंज बॉक्स इज देयर, लिंकेजेस इन द प्रोडक्शन. तो यहां से आपको एक और वर्ड है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए. What are linkages? It is given in your orange box that linkages in the production refers to a situation when expansion of one industry facilitates the expansion of other. एक इंडस्ट्री अगर बढ़ती है तो दूसरी इंडस्ट्री को वो प्रमोट करती है. और ये कब हो सकता है? This is only possible when infrastructure facilities are available in ample. आपके इस पैराग्राफ में ample वर्ड बहुत बार यूज किया है. ample means a good quantity, in sufficient amount or abundant amount. Is it clear बेटा? ठीक है. Then is your growth becomes a self-propelling activity of change. ठीक है, अगर आपके लिंक प्रोडक्शन के फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए तो यू गेट, और ये पेपर में आपके आ सकता है ये वाला सेंटेंस, रियली एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दैट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बिकम्स अ सेल्फ प्रोपेलिंग, खुद बढ़ने वाली. ठीक है, सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी ऑफ चेंज. ठीक है, एक्टिविटी ऑफ चेंज. सेल्फ प्रोपेलिंग मीन्स खुद बढ़ने वाली. देन इज बेटा योर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस द साइज ऑफ मार्केट. योर फोर्थ पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस द साइज ऑफ मार्केट. एनहेंसेस द साइज ऑफ मार्केट. मार्केट का साइज बढ़ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह हेल्प करने मिलते हैं. जैसे हमने ब्रिटिश इंडिया में भी पढ़ा था, जब ब्रिटिश राज हुआ था वहां पे
कि जब रेलवेज आए तो मार्केट बढ़ गया था, ठीक है। देन इज योर फिफ्थ वन, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपका प्रेजेंटेशन ऑसम होना चाहिए, 1 नंबर का। और प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता दिया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक बार वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखाया वो आप सभी में अप्लाई कर सकते हो, और आप अपने खुद के प्रेजेंटेशन भी इन्वेंट कर सकते हो बाय सर्चिंग ऑन इंटरनेट और बाय यूजिंग योर ओन ब्रेन, ठीक है बेटा। एनहेंसेस एबिलिटी टू द वर्क। देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मीन्स हेल्थ एंड फैसिलिटीज है। अगर आप अच्छे से हेल्थ होगे और आपके पास स्किल फॉर्मेशन है, आपके पास एजुकेशन है, तो आपकी जो एबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। देखो एक तो अनपढ़ आदमी कोई काम करे और एक पढ़ा लिखा इंसान कोई काम करे, एक बीमार आदमी काम करे, एक हेल्थ से जो हेल्थ में ठीक है वो आदमी काम करे, तो दोनों के काम में डिफरेंस होता है। इसका मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी अच्छी है, इट लीड्स टू योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आउटसोर्सिंग बढ़ती है। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग मीन्स ग्लोबलाइजेशन, बाहर कंट्रीज में जाना, स्टडी सेंटर्स में जाना और एक्सपेंड करना किसी भी चीज को, दैट इज योर आउटसोर्सिंग ओवर हियर, ठीक है। और ये कब हो सकता है? जब हमारे पास साउंड सिस्टम और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। साउंड सिस्टम मीन्स बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत, बहुत अच्छा। देन इज बेटा लास्ट वन पॉइंट, तो ये आपके पेपर में आ सकता है 6 मार्क्स में। हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू ईच अदर, ऐसे आ सकता है, या जो मैंने लिखा है हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लास्ट पॉइंट इज ओवर हियर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर induces FDI. FDI means foreign direct investment, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है, जिससे बेटा बाहर के लोग, आउट ऑफ कंट्री लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडियन फर्म्स में, और जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 263 ध्यान से देखना, पेज नंबर 263 पे एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज गिवन एनर्जी की, एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, इसका मतलब आपका पेज नंबर 263 का एनर्जी से नीचे वाला पार्ट, ठीक है, 264, 263 एनर्जी से नीचे वाला पार्ट, बिलो एनर्जी, ठीक है, बिलो एनर्जी वाला पार्ट 264, 265, 266, 267, देन बेटा 268, 69, 70, और बेटा आपका 71 are deleted from your syllabus, are deleted from your syllabus for this year only, for 2020 and 2021 session, ठीक है। Is it clear बेटा? Okay, now is your next, that is जो हमारे हेडिंग थी पेज नंबर 263 के टॉप में जो हेडिंग थी बेटा, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, हम जो सिलेबस में है वो हमारे बी वाला पार्ट है, दैट इज हेल्थ, दैट इज की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर,
structure. This is in our syllabus.